बोले सोनिहाल ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। तेग 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 पंथ की जीत पंथ की जीत वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਸੀਓ, ਜਵਾਨ, ਅਫਸਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਾਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਰਾਲ ਨੂੰ ਅਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਾਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਾਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਅਗਰ ਫੌਜ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਅਪ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। आप फौजियों के मोरल डाउन होने की बात कर रहे हैं। 286 दिन हो गए, रोड पे बैठे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं, उधर अग्निवीर के भी स्टूडेंट सामने बैठे हैं आपके, और आप भी बैठे हो। तो 4 साल की सर्विस और इधर ORPO2 नहीं दे रहे, तो फौज का मोरल तो डाउन होगा ही। हाँ बिल्कुल, फौज का मोराल डाउन होएगा, क्योंकि ना तो साड़ी कोई मंग मन्नी जा रही है। दूसरा अग्निवीर का काम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਮਸਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 4 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਰਹੇਗੀ, 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ तो 6 महीने का ट्रेनिंग कर दिया, 6 महीने का ट्रेनिंग करके सेना सीमा पर खड़ा कर ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੀ ਏ, ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਸੋਚਦੀ ਏ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ होनी चाहिए है। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नियम है कि लोगों की सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई जाती है। तो सरकार अपने लिए क्या कर रही है ये तो लोगों के लिए करना चाहिए। और वो करें तनख्वाह के लिए पैसे नहीं, हमारे पास पेंशन के लिए पैसे नहीं है। ਅਗਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਮ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਟੂ ਹੈ। नहीं, पैसा पैसा कैसे मान लें कि नहीं है? 10.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया है पिछले 9 साल में गवर्नमेंट ने, तो कैसे मान लें पैसा नहीं है? उद्योगपतियों का माफ किया है और किसी नीचे वाले का, नॉर्मल बंदे का, मीडियम साइज बंदे का कुछ भी माफ नहीं किया है। उनसे पैसे बटोर रहे हैं कि हमें पैसे दो, पेंशन बंद कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन बंद होने से जो भी फौज में जाएगा उसको क्या जरूरत है लड़ने की, क्या जरूरत है मरने की? बोलो। अभी आपने रेल रोकी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रेल रोको प्रोग्राम में था और हमने 45 दिन पहले से बात किया था कि रेल रोकेंगे। 45 दिन में गवर्नमेंट ने कोई भी बात नहीं की है। गवर्नमेंट ने एक ही चीज सोची कि इनको जैसे कैसे भगा दो इधर से, और कुछ नहीं सोचा उसने ये नहीं सोचा कि ये अगर अफसर बोलते हैं कि ये चले हुए कारतूस है, अगर चले हुए कारतूस है तो कारतूस ऐसे हैं कि जो कभी फौज को भूलते नहीं है। इन्होंने ट्रेनिंग की है, इन्होंने 28 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल नौकरी किया है। जिन्होंने नौकरी किया वो डिसिप्लिन में बधे हुए हैं, और बधे हुए ऐसे हैं कि जो कभी भी जीवन भर भूल नहीं सकते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे
तब तक उस डिसिप्लिन को याद रखेंगे। और लड़ाई जो है, लड़ाई कैसे लड़नी है ये जानते हैं सब, कैसे हमने काम कर रहा है ये सब जानते हैं। सर आपको क्या लगा कि रेल रोकने पे आपने सही किया, आम लोग को भी वो फर्क पड़ा होगा? आम लोगों को फर्क पड़ा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमने 45 दिन पहले इस प्रोग्राम का शुरू किया था, लोगों को भी बताया था कि प्लीज़ इस दिन अपनी सर्विस ना करो, इस दिन अपनी यात्रा ना करो, ताकि मोरल डाउन नहीं हो किसी का। अगर गवर्नमेंट बात करती तो हम रेल कभी नहीं रोकते। गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको भगाने का सिस्टम रखो, जैसे कैसे अधिकारियों ने सोचा इसको भगा दो। शांतिपूर्ण कब तक बैठे रहेंगे? सरकार नहीं मान रही आप? जब तक सर मोदी साहब हमारी एक रैंक एक पेंशन की मांग नहीं मानती। मोदी अभी सरकार तो मान ही नहीं रही। देखो, अभी मोदी साहब ने दिवाली का त्योहार आया, मोदी बॉर्डर पर चला गया कि जहां त्योहार मैं मनाऊंगा वहीं मैं मेरे जवान मनाएंगे, लेकिन ये उनके साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी 20-20 साल सर्विस है, हमने 24-24 फुट बर्फ में रहकर नथुला पास में रहे हैं, तंगदर में रहे हैं, साधना पास पहाड़ी जो है रात को क्रॉस करते थे, पुंछ में रहे हैं। उधर हमारे आधे जवानों की बर्फ लगाकर टांगे काटी गई, हाथों बाजू काटे गए, लेकिन मोदी सरकार फिर भी नहीं मानी कि हाँ भी इनकी जो मांग है मैं मान लूँ। वैसे तो मोदी बोलता है कि मैं चाइना से ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चाइना भूटान में आ रहा है, चाइना तो श्रीलंका में आ रहा है, चाइना मालदीव में आ रहा है, तो आर्मी का मोरल डाउन कर रहा है। जब ये आर्मी का मोरल होगा तो आर्मी क्या करेगी? फिर विदेशी सेना हिंदुस्तान में कभी भी टक्कर सकती है। पूर्व फौजी भी कह रहे हैं कि जो 4 साल की सर्विस से अग्निवीर चलाया है उससे मोरल डाउन होगा। देखो जी, 4 साल मेरे गांव के आदमी एक 4 साल अग्निवीर का शहीद होकर एक वैसी सादे डब्बे में पैको सादी एम्बुलेंस में आ गया, लेकिन उसको किसी भी जवान किसी युनिट में किसी ने सलामी नहीं दिया, किसी के। हमारा सामान्य तहसील के साथ गाँव है, जहाँ लड़के को उनके हमारे मुख्यमंत्री भगवान ने जरूर उसको 1 करोड़ रुपया दिया है जब वो उसके घर वालों को, लेकिन मोदी सरकार के उसकी मौत के उपरांत कुछ नहीं दिया। अग्निवीर आपके गांव का एड्रेस बताओ। वो साथिया सम्मान के साथ गांव बलियाल था सर उसका। वहाँ का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 करोड़ रुपया दिया सर उसके घर वालों को, लेकिन मोदी सरकार ने एक सादी एम्बुलेंस में उसकी लाश को घर भेज दिया कि इसके घर में भेज दो। बस ये हो रहा है अग्निवीरों के साथ। सर जी, मेरा नाम दर्शन सिंह है, मैं पटियाले तो आया और मैं जंतर मंतर ते आया। मेरी इच्छा है कि साडे जिहड़े फौजियां दे पूरे हक मिलने चाहिए ने, एक पेंशन एक मतलब सारा कुछ मिलना चाहिए, हक मिलने चाहिए सानू पूरे। तो इसे करके असीं इकट्ठे होके इत्थे आए हां, तां इसे तरह साडे जथे इत्थे आंदे रहणगे, पूरा हक असीं लैके छड्डांगे, कदे भी असीं हक ते पिछे नहीं हटांगे। 10 महीने लगभग 9-10 महीने हो रहे हैं आपको बैठे। यदि शांति से आप बैठे हो, सरकार इसलिए नहीं सुन रही क्या आपकी बात? सर असीं शांति नहीं ना बैठ सकते ना बैठेंगे, क्योंकि असीं साडा जिहड़ा पिंडां दे विच साडे जवानां दा पूरा खून उबलिया होया, वो ऐ चाहते ने कि साडे नाल इन्नी इंसाफी क्यों सरकार कर रही है, की साडे विच कमी सी कि असीं पूरी नौकरी करके आए और लड़ाइयां लड़के आए, और असीं ये चाहते हैं कि साडा कोई भी विदेश का फौज साडे मतलब साडे हिंदुस्तान ते कब्जा ना कर ले। साडी इन्नी हिम्मत है हजे भी, और असीं हिम्मत रखांगे, इसे तरह ही असीं अपने हक भी पूरे लैके हटांगे। साथियों क्या मैसेज देना चाहोगे? असीं ये मैसेज देना चाहते हैं भी असीं हमेशा अपना ग्रुप बनावांगे, ग्रुप बना के लड़ाई लड़ांगे, और बड़ा ग्रुप बनावांगे जिहड़ा कि सरकार नूं मजबूर कर दूगा सोचने तो।